You're watching Reality Check in the escalating war between the Aam Aadmi Party versus the BJP after the CBI raids on Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia, a new bombshell. Mr. Sisodia, who along with Arvind Kejriwal is in Gujarat today, said that he got a message from the BJP that if he joins the BJP and splits the Aam Aadmi Party, the cases against him will be dropped. Let's listen. मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको दो ऑफर हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आपके सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। As you hear the BJP denying those claims, now it's clear that the raids have triggered a political battle on the ground. Aam Aadmi Party's Big Two went on a whirlwind tour of Gujarat. This is Mr. Kejriwal's 10th visit to the Prime Minister's home turf in 4 months. He claimed that the BJP is losing ground in Gujarat and that's the result, the trigger behind these raids on Manish Sisodia. While in Delhi, the BJP took to the streets outside the Delhi Chief Minister's house protesting against what they call corruption in the Aam Aadmi Party government. At the core of it, of course, is the allegations and counter-allegations between both sides. The CBI's FIR against Manish Sisodia says the liquor lobby was involved in framing the liquor policy of Delhi and that Sisodia's aides diverted kickbacks they got from the liquor lobby to government officials. They claim that liquor firm owners sent cash to an AAP strategist and that the liquor policy was framed without informing Delhi's Lieutenant Governor, who'd written to the Home Ministry saying that the Delhi liquor policy led to a 144 crore rupee loss. The Aam Aadmi Party has, of course, rebutted these charges. They deny any kickbacks. They say that it was the BJP and centre's quote-unquote attacks on the liquor shops and the liquor policy that led to their U-turn, where they scrapped the policy earlier this year. They say that it was the LG's intervention that actually led to the revenue loss, and that political vendetta was behind raids on Manish Sisodia. All right, let me go across to panel, but first let me go one-to-one with Sanjay Singh, a senior leader of the Aam Aadmi Party, Rajya Sabha MP. Thank you so much, Sanjay ji, for joining us. Sanjay ji, ये बताइए कि आज ये जो धमाका मनीष सिसोदिया ने एक तरह से किया है, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी से ऑफर आया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, आम आदमी पार्टी को तोड़ देते हैं तो ये सारी रेड्स खत्म हो जाएंगी। बीजेपी कह रही है कि ये बिल्कुल गलत है, इसमें इसका कोई मतलब वो नहीं है, बेसिस नहीं है, ये बिना प्रूफ के कहा जा रहा है। तो बीजेपी के खिलाफ आपको लगता है कि ये कोई बेसिस नहीं है? जिस पार्टी ने गोवा के अंदर तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, जिस पार्टी ने उत्तरांचल में, अरुणाचल में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, जिस पार्टी ने कर्नाटक में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, महाराष्ट्र की पूरी सरकार गिरा दी, लालू यादव की पार्टी के साथ ऐसा ही खेल ये पहले कर चुके हैं। आपको लगता है कि उस पार्टी के इस बयान पर कोई यकीन करेगा कि इस आरोप का कोई बुनियाद नहीं है? यही करते हैं ये। नहीं, बट संजय जी, नहीं संजय जी, मैं ये कह रहा हूं, इसका कोई प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि ऐसा ऑफर दिया गया? अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या प्रूफ है कि मुकुल राय, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को खुद भारतीय जनता पार्टी उजागर करती है और उनको अपनी पार्टी में शामिल करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है, क्या मुकुल राय ने बताया था? सुन तो लीजिए, क्या मुकुल राय ने इस चीज को सार्वजनिक किया था? नहीं, तो मुकुल राय ने नहीं बताया तो हमारे तो क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मनीष सिसोदिया बता रहे हैं ना, मैं कहता रहा हूं आपसे जी। एकनाथ शिंदे शामिल हो जाते हैं, बताया नहीं। मुकुल राय शामिल हो जाते हैं, बताया नहीं।
हेमंत अच्छा। विश्व शर्मा शामिल हो जाते हैं, बताया नहीं। अजीत पवार जाके शपथ लेते हैं, बताया नहीं। मनीष सिसोदिया वो पहले शख्स है जो पर्दाफाश करते हैं इनके नहीं नहीं, बट जैसे कुकृत्य कि का। आप नहीं, बट जैसे आप जानते हैं संजय सिंह जी की राजनीति में, पब्लिक लाइफ में क्रेडिबिलिटी के लिए कोई भी आरोप जो लगाया जाता है उसका कुछ तो सबूत दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो ये बता सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से किसने कांटेक्ट किया उनको? हु कांटेक्टेड हिम? तो आप ये कहना चाहते हैं कि सोर्सेस के माध्यम से जो सीबीआई की एफआईआर दर्ज की गई है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद, फर्जी, गलत है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको सीबीआई वर्सेस नहीं, मैं इसको सीबीआई वर्सेस वो नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कोई आरोप कोई लगाती है बीजेपी या कोई और पार्टी, तो आपका सबसे पहला सवाल होगा कि भैया सबूत दीजिए हमें। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि इतना बड़ा जो आरोप लगाया है मनीष जी ने, क्या वो इतना कुछ शेयर कर सकते हैं कि भाई किसने बीजेपी की तरफ से ऑफर किया है? कोई कॉल, फोन रिकॉर्ड, मतलब कुछ डिटेल बताएंगे, समय आने पे सब बताएंगे। जो प्रयास इन्होंने महाराष्ट्र में किया वो दिल्ली में सफल नहीं होने दिया मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया ने कहा मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं और मैं कहीं टूटने और बिकने वाला नहीं हूं, मैं आपसे लड़ूंगा और आपकी बातों का जवाब दूंगा। बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे समय आने पे। लेकिन ये ऐसा प्रयोग एक राज्य में किए हो तो आप इनकी, तब मनीष सिसोदिया के आरोप पर आप सवाल उठा सकते हैं कि हाँ भाई एक कैसी बात कह रहे हैं। अरे भाई यही काम करते हैं ये, विधायकों को खरीदना, तोड़ना, मंत्री पद का लालच देना, सरकारों को गिराना। आप बताइए, जिस अजीत पवार के लिए ये लोग पूरे चुनाव में कहते थे पवार साहब चक्की पिसिंग 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 जेल में जाएंगे, सुबह 6:30 बजे उनके साथ शपथ ले लेते हैं। हेमंत विश्व शर्मा की बुकलेट निकाली, बट संजय जी वाटर घोटाले की, नहीं बड़े संजय जी, घोटाले की बुकलेट बीजेपी ने निकाली थी, उनको शामिल कर लिया। नारद स्कैम, शारदा स्कैम में ओके, बट संजय जी एक सेकंड, खिलाफ बीजेपी निकल के आई। ओके, बट संजय जी जहां तक, नहीं एक सेकंड संजय जी, मेरा ये कहना है कि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने चार्जेस लगाए हैं कि लिकर लॉबी ही पॉलिसी फ्रेम करने में इन्वॉल्व थी, सिसोदिया जी के कोई साथी थे। एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए, एक सेकंड मुझे भी थोड़ा सा, लेट मी ऑल्सो स्पीक। उन्होंने कहा है कि सिसोदिया जी के जो साथी हैं उन्होंने किकबैक्स लिए भी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से लिए भी हैं और आगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी दिए भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन चीजों को आप भी वेलकम करते हैं कि भाई अगर ऐसे करप्शन के एलिगेशन है आप उसको बिल्कुल ही आउटराइट डिसमिस करने के जगह आप नहीं चाहते कि इसकी कोई वो हो, मतलब आप तो एंटी करप्शन है, आप एक वो लेबल लेते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल दैट दीज चार्जेस शुड बी प्रोब्ड। 1 मिनट का समय देंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। इन्होंने 7 साल पहले जब केजरीवाल जी के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा था तो क्या बोला था? इसी तरह याद कीजिए, चिल्ला रहे थे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, कोई बचेगा नहीं, सबको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। क्या निकला 7 साल में? कुछ नहीं निकला। सीबीआई का इसी तरीके का छापा मनीष सिसोदिया के घर पे पहले मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया, क्या निकला? कुछ नहीं। सर्विसेज के मामले में 3 साल तक सीबीआई की जांच चलाई सत्येंद्र जैन पे, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कोर्ट से बरी हुए वो लोग, और कई मामलों में दिल्ली पुलिस को फटकार लगी। और तो और छोड़िए, आप याद कीजिए कि किस तरीके से 3 दिन तक लगातार कैलाश गहलोत के घर पे छापेमारी चली। 31 जगहों पे आपने छापे मार लिए। 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया के घर पे आपने सीबीआई के छापे मरवाए, एक भी रुपया निकला? कोई संजय सिंह जी, कोई नहीं, बट ये बताइए, कुछ बताया अपने देश को? बट पॉलिटिक्स में आप कह रहे जांचें करते रहेंगे, करते रहिए। एक शिक्षा मंत्री जो स्वास्थ्य पे, बिजली पे, एक सरकार केजरीवाल का जो मॉडल काम कर रहे हैं, हम दिन रात सब कुछ छोड़ के, बट कहीं ना कहीं, नहीं एक सेकंड, कहीं ना कहीं फाइलों की सुगलू कमेटी ने, ओके, बट कहीं ना कहीं आप मानते हैं संजय सिंह जी, क्या निकला आप बताइए? अच्छा ये बताइए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं, क्योंकि इस वक्त आप गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कूद चुकी है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इन एलिगेशंस को डिनाई करते रहें, लेकिन पब्लिक के माइंड में कहीं ना कहीं आशंका बनती है कि क्या वाकई इसमें कोई, इज देयर एनी, इसमें कुछ बेसिस हो? कोई आशंका नहीं बनती। यही पब्लिक है जो देख चुकी है कि इतने सारे मामलों में चिल्ला चिल्ला के भाजपा के लोग आरोप लगाते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं निकला।
पब्लिक इस बात को समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता इनके लिए प्रॉब्लम है, अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल इनके लिए प्रॉब्लम है, अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य का मॉडल इनके लिए प्रॉब्लम है, दिल्ली और पंजाब जीतना इनके लिए प्रॉब्लम है, गुजरात में पहुंचकर जनता के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान करना इनके लिए प्रॉब्लम है। अरविंद केजरीवाल को रोकना इनका मकसद है। पर आप सोच पब्लिक देख रही है, समझ रही है। और आप अरविंद के आखिरी सवाल आपसे, हमारे खिलाफ बहुत कराते रहे ये। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि अरविंद केजरीवाल आज इंडिकेट कर रहे थे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे 2-3 दिन में। ये तो बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं, अरेस्ट कर ले, सबको अरेस्ट करके जेल में डालें। तो क्या इससे लड़ाई रुक जाएगी? क्या इससे शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्रांति हमारी जो है वो रुक जाएगी? नहीं रुकने वाली है। मोदी जी को अब ये समझ लेना चाहिए, ना उनसे केजरीवाल रुकेंगे, ना उनका शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकेगा, और ना मनीष सिसोदिया उनके आगे झुकने वाले हैं। ओके संजय सिंह जी, let us see how it plays out, but thank you indeed for joining us.